रियल गैसेस में अपन लिखेंगे, देखो भाई आइडियल जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस, है ना, जो गैसेस होते हैं ना, तो ऑल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस, ऑल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस, है ना, बिहेव एज आइडियल गैस एट एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अपन कहेंगे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सारे के सारे जो गैसेस होते हैं ना, कोई भी गैस हो, जो भी अपन को पता है, द गैसेस विल बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब जितना भी आइडियल गैस आपने मुझे पढ़ाया है अब तक, उसमें ये कंडीशंस ऑटोमेटिकली आते होंगे। वैसे भी आइडियल गैस का मतलब हाइपोथेटिकल गैस होता है, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं पूछना, तो वी से दैट दे आर आइडियल गैसेस, ठीक है। अगर किसी गैस को आप लो प्रेशर पे लेके जाओगे और हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, तो मैं बताऊंगा कि वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगा, राइट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इसमें आइडियल गैस, रियल गैसेस के लिए ऑल गैसेस, ठीक है ना, आप लिखो ऑल गैसेस लाइक N2, O2, CO2, helium, etc. are real gases. Obviously, but reality में they are gases, are real gases, are real gases. But at low pressure and high temperature, they behave as ideal gas. These all are real gases, right? ना वो gases हैं, हमको पता है, reality में they are gases, are real gases, are real gases. But at low pressure and high temperature, but at low pressure and high temperature, but at low pressure and high temperature, they behave as a ideal gas. They behave as ideal gas. तो अभी होगा क्या ना, जब प्रेशर कम होता है तो पार्टिकल्स आपस में काफी दूर होता है। प्रेशर कम है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो पास आएंगे, और टेम्परेचर भी ज्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो पार्टिकल ना कभी भी आसपास आके रुक नहीं सकता, वाई इट इज, टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो कोलाइड करके दूर चला जाएगा, राइट, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। और प्रेशर कम है इसलिए पार्टिकल्स हमेशा ही दूर रहेंगे। हाई प्रेशर होगा तो पास आएंगे ना, हाई प्रेशर होगा तो वो पास आएंगे ना, उनसे रहता है तो वो पास आएंगे। अब अपन कहेंगे बट as the pressure is increased, but as the pressure is increased and the temperature is, right now, but as the pressure is increased, but as the pressure is increased and but as the pressure is increased and the temperature is decreased, but as the pressure is increased and temperature decreases, these gases, temperature decreases, these gases starts, these gases starts showing the deviation from their ideal behavior. These gases starts showing the deviation from their ideal behavior. Start showing deviation from their ideal behavior. But as the pressure is increased and the temperature decreases, these gases starts showing the deviation from their ideal behavior. Deviation from their ideal behavior.
because at high pressure the particles comes nearer to each other. Because at high pressure gas particle comes nearer to each other. So there is the intermolecular forces among the gas particles. So there is intermolecular forces among the gas particles. So there is intermolecular forces among the gas particles. There is intermolecular forces among the gas particles. Full stop. This deviation of gases, from their ideal behavior, is governed by the factor. जो इनका डेविएशन होता है वो गवर्न करेगा, एक फैक्टर होता है जो उसको गवर्न करता है कि कितना डेविएशन हुआ. This deviation of gases is governed by the factor called as compressibility factor. Compressibility factor को अपन Z से डिनोट करेंगे. Governed by the factor called as compressibility factor. Called as compressibility factor. So this compressibility factor ना Z is equal to होता है PV upon nRT. This is equal to Z. PV equal to nRT. This is equal to Z. Z जो होता है वो अपन ऐसे लिखते हैं PV is equal to nR. That is PV upon nRT is equal to Z. Right? अभी अपने पास किसी ने अपन से पूछा है, मैं थोड़ा सा एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूं. किसी ने अपन से पूछा कि बट वी आर टेकिंग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाइल कैलकुलेटिंग फॉर आइडियल गैसेस. ये कभी नहीं कहा मैंने, और ना ही मैंने आपसे कभी ये कहा कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर ही लेना आइडियल गैसेस के लिए कुछ भी कैलकुलेशन के लिए. नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या? रूम टेम्परेचर. इसका मतलब है आइडियल गैसेस को 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते. नहीं, अभी रियल गैस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि लो प्रेशर क्या होता है और हाई टेम्परेचर क्या होता है या लो टेम्परेचर क्या होता है. आप थोड़ा सा फॉलो करते जाओ, मैं आपको सारा पार्ट बताऊंगा कैसे. एक और बात, पढ़ना एक अलग बात होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफरेंट पार्ट होगा. वो मैं आपको बताऊंगा कैसे. पहले आप अच्छे से समझते जाओ करना क्या है मैं जो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. अब अगर मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ और Z will be equal to PV upon RT, लेकिन ये 1 मोल के लिए होगा. तो अपन क्या करेंगे, इसको छोटा सा इधर M लिख देंगे. M लिखने का मतलब है वो मोलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस. तो Z will be equal to PVM upon RT, मतलब that is for a 1 mole of a gas. ठीक है ना? PVM upon RT मतलब वो मोलर वॉल्यूम है, where VM is a molar volume, है ना? Where VM is a molar volume. ठीक है भाई, मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया वॉल्यूम. अब 1 मोल ले लिया आपने तो उसको मोलर वॉल्यूम बोल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है ना? तो अपन उसको मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं. अब अपन क्या करेंगे, therefore we can write for ideal gases. भाई आइडियल गैस के लिए तो हम क्या लिखते हैं,
PV is equal to nRT होता है, therefore Z will be equal to 1. मतलब अगर Z का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब है गैस इज आइडियल. अगर Z का वैल्यू 1 है तो गैस विल बी आइडियल, बिकॉज PV विल बी इक्वल टू nRT ना, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है. अगर ये दोनों इक्वल है तो Z का वैल्यू 1 होगा. मतलब अगर Z का वैल्यू 1 आ रहा है इसका मतलब है इट इज आइडियल गैस. फॉर रियल गैस PV will not be equal to nRT. इसका मतलब है Z will not be equal to 1. ठीक है भाई, Z will not be equal to 1. तो there may be two conditions. Z can be greater than 1, Z can be less than 1. तो वहां पर अपने पास two conditions हो जाएंगे. So when Z is greater than 1, then PV will be greater than nRT. और अगर Z less than 1 है तो then we can write that PV will be less than nRT. ये अपने लिखा हुआ है. ठीक है भाई, इसमें तो मैं फॉर्मूले से ही बता सकता हूँ. अगर इसका वैल्यू 1 है इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब ये प्रोडक्ट बड़ा है इससे, अगर ये लेस देन 1 है इसका मतलब ये स्मॉलर है इससे. ठीक है, फॉर्मूला आपने लिख के बताया, Z को मैंने मान लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Z का वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 1 में मुझे बस ये बताना था कि क्या Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रहेगा या 1 से कम भी हो सकता है. नॉट इक्वल टू 1 में मींस इट कैन बी एनी, बट नॉट द नेगेटिव. नेगेटिव नहीं होगा ऑब्वियसली. यहाँ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कोई वैल्यू नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकती. ठीक है, अब अपन कहेंगे इसमें अगर PV इज ग्रेटर देन nRT, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर ज्यादा रहा होगा. अब अपन को एक बात तो पता है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा. इसके ना ग्राफ भी अपन ने बनाए थे. किसी ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था ग्राफ से रिलेटेड, और उसने मुझे बोला था सर वो ना ग्राफ वाला क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर देना. उसमें मतलब ग्राफ भी ऐसे थे, PT स्क्वायर वर्सेस T लाइक दैट, ऐसे ग्राफ थे उसमें, या V वर्सेस 1/P स्क्वायर. वो बड़े अच्छे ग्राफ है और वो इजी भी काफी होता है, वो टफ नहीं होता, वो बड़े इजी होते हैं. अपन को थोड़ा सा बस आइडिया लगाना होता है कि भाई कैसे, उसमें अपन को कंसेप्चुअली काफी स्ट्रांग होना होता है. कैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा तभी प्रेशर बढ़ेगा. ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा गैस का, और वॉल्यूम कम करूंगा अपन को पता है, वॉल्यूम करोगे तो लेस स्पेस में ज्यादा पार्टिकल आपस में कोलाइजन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हाँ तो बढ़ा ना, अपन ने दोनों चीजें पढ़ी. बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम छोटा करो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम छोटा करो टेम्परेचर बढ़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है. वो ग्राफ अपन डिस्कस करेंगे नो डाउट. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फिर मैंने उसको सेपरेटली नहीं बताया. मैंने ये सोच के कि अपन तो क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, वो क्लास में डिस्कस करने लायक है. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें मुझे ये पता चल गया कि ये कंडीशन तब आता होगा जब प्रेशर ज्यादा होता होगा. राइट ना? ठीक है ना? अच्छा, उसका थैंक यू भी आ गया जिसने पूछा था मुझसे. कोई बात नहीं, अपन उसको डिस्कस करूंगा, मुझे सब याद रहता है. बस मैं इंतजार करता हूँ कि उसको ना राइट टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओसी भी मैं शुरू नहीं करता अगर तुम लोग इतने पीछे नहीं पड़ते तो, और मैं केमिस्ट्री शुरू नहीं करता मैं. बट तुम लोग कुछ ज्यादा ही पीछे पड़े हुए तो मैं शुरू करूंगा उसको, नो डाउट. अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे थोड़ा सा, मुझे लगता है ऐसे रिफ्लेक्शन कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना. हाँ, वो सन रेज आ रही है इसलिए. तो अपन क्या करेंगे कि भाई z इज ग्रेटर देन 1 अपन ने लिखा, तो अब अपन क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, z ग्रेटर देन 1 इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होता होगा तो z ग्रेटर देन 1 होता होगा. प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा. ये वाला वैल्यू कांस्टेंट रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे. लेकिन इस केस में प्रेशर कम रहता होगा, और या फिर आप कहोगे कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, और या फिर आप कहोगे प्रेशर कम होता है. ठीक है, मतलब लो प्रेशर पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई z लेस देन 1 रहता होगा, और हाई प्रेशर पे z ग्रेटर देन 1 होता होगा. मतलब सारा का सारा पार्ट आपने यहीं से कोरिलेट किया कि भाई लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है तो आइडियल गैस,
लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर को डिक्रीज, जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, प्रेशर को बढ़ाऊंगा, तो डेविएशन शुरू हो जाएगा, और वो डेविएशन किससे गवर्नड होगा? जेड से। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि ठीक है भाई, ये डेविएशन होता क्यों होगा? तो अपन लिखते हैं रीजन फॉर डेविएशन, रीजन फॉर डेविएशन, और फिर अपन एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि इस जो रीजन अपन लिखेंगे डेविएशन के लिए, उसको अपन एक्सप्लेन भी करेंगे। रीजन फॉर डेविएशन भाई आपको यूज करना चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा तो आइडियल गैस है, अगर नहीं होगा तो इट इज अ रियल गैस। व्हाट वाज द रीजन फॉर डेविएशन? एक रीजन फॉर डेविएशन तो होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, बिकॉज रीजन फॉर डेविएशन, तो अपन लिखते हैं भाई देखो, डेविएशन कब हो रहा है? जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर को कम कर रहे हो, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। आपने प्रेशर को हाई किया और टेम्परेचर को कम किया, तो अब ऐसे क्यों हुआ होगा? तो देखो क्या हुआ होगा, जब अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे ना, तो पार्टिकल पास आ गए होंगे, टेम्परेचर भी कम हो गया तो वेलोसिटी काफी कम, तो ये पार्टिकल ना पास आके रुक जाते होंगे, या रुक के धीरे धीरे इधर उधर जाते होंगे, तो इनके बीच में ना वंडरफुल फोर्सेस, मतलब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता होगा। इनको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, तो इसमें अपन कहेंगे अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय gas particles, the volume occupied by gas particles is not negligible as compared to volume of container, is not negligible। हाँ, तो रियल गैस में तो जब आपने पोस्टुलेट लिखवाए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, है ना, तो अपन ने लिखा था volume occupied by gas particle is negligible as compared to the volume of container because the particles are very much far apart from each other, so वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं that is negligible as compared to volume, क्योंकि इसमें डेविएशन को अपन डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कैसे होता है। सो यहाँ ये ऐसे इसलिए हो रहा है बिकॉज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसकी वजह से डेविएशन आ रहा है, जबकि हमने आइडियल गैसेस में क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस पार्टिकल विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये अपन ने लिखा हुआ है पोस्टुलेट केटीजी, जो पोस्टुलेट अपन ने लिखे थे। तो जब हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल तो पास पास आ जाएंगे ना, पास पास आएंगे तो उनमें वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम बताऊंगा मैं उसको, क्योंकि इनका मॉडिफिकेशन भी बताऊंगा मैं। दूसरा, since the particles are very close to each other, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। So at high pressure and low temperature there exist the intermolecular forces between the particles, the intermolecular forces, molecular forces among the gas particles, among gas particles, among the gas particles। ये दोनों मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से डेविएशन होता है, क्योंकि जब हम आइडियल गैस पढ़ते हैं तो वहां पार्टिकल्स बहुत दूर होता है, क्योंकि लो प्रेशर है ना, बहुत दूर होता है पार्टिकल, और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी बहुत ज्यादा होती है, कोलाइड करने के बाद दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल पास आ गए, अगर पार्टिकल पास आएंगे तो ऑब्वियसली बात उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेक करेंगे अपन कैसे होते हैं। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, अब अपन को क्या पता था कि आइडियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस ऑन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करोगे तो गैस का नेचर चेंज होगा। अगर गैस का नेचर चेंज होगा तो इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। कब मॉडिफिकेशन करना है?
हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। सो रीजन फॉर डेविएशन इज दिस. So thus at high pressure and low temperature we require the correction in the ideal gas equation. Thus ये दोनों रीजन होता है अपने पास. Thus the correction in ideal gas equation is required at high pressure and low temperature. तो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा इनका, तो करेंगे करेक्शन. सो हमारे पास जो आइडियल गैस, मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट अपन लिख चुके हैं, इतना ही हटाऊंगा. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई आप आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन कर लो. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, P ये आइडियल है, V आइडियल है, इज इक्वल टू nRT. ये हमारे पास करेक्शन रिक्वायर्ड है, ये इक्वेशन है अपने पास. सो रिक्वायर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. टेम्परेचर कम है तो अपन उसे कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं. प्रेशर हाई है तो ठीक है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पहले लो प्रेशर था, अभी आपने हाई प्रेशर किया. तो इस इक्वेशन में हमें करेक्शन करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई. सो करेक्शन रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर लेते हैं. तो अपन कहेंगे ठीक है आप इसमें और इसमें करेक्शन बता दो, टेम्परेचर आप कांस्टेंट बोल रहे हो तो ठीक है मैं कर देता हूं करेक्शन. तो अपन क्या करेंगे, द करेक्शन फॉर gases at high pressure and low temperature, these are real gases is given by और आप इसको एक्सप्लेन लिख सकते हैं, अपन एक्सप्लेन बाय वंडरवॉल्स. बाय वंडरवॉल. अब ये नाम आपने काफी सुना होगा, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में तो मैंने काफी बार बोला होगा. दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय वंडरवॉल्स. तो करेक्शन के बाद जो अपन मॉडिफाइड इक्वेशन लिखेंगे ना, उसको वंडरवॉल इक्वेशन भी बोलते हैं. एस तो ठीक है करेक्शन लिख लेते हैं अपन. तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले अपन ने वॉल्यूम लिखा था तो वॉल्यूम करेक्शन ही कर लेते हैं. चलो भाई वॉल्यूम करेक्शन, तो देख लेते हैं उसने करेक्शन क्या किया था, है ना. अपन वॉल्यूम करेक्शन की बात कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि जो भी करेक्टेड वॉल्यूम होगा वो रियल गैस का वॉल्यूम होगा. हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे द गैसेस बिहेव एज अ रियल गैसेस, क्योंकि दे विल शो द डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, सो दे विल बी द रियल गैसेस. उस केस में z का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है. तो चलो देखते हैं अपन कैसे बताएंगे, इसको अपन हटा देते हैं भाई. तो वॉल्यूम करेक्शन के लिए व्हाट आई विल डू, अब अपन जो करेक्शन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. तो पहले अपन ये देखते हैं कि एट लो प्रेशर मतलब कैसे होता होगा, आइडियल गैस कैसे होता है. तो देखो भाई पहले तो मैं आइडियल गैस बनाता हूं. अगर मैं आइडियल गैस बनाऊंगा ना तो मैं एक वेसल ले लेता हूं, है ना. मैं इसको हटा देता हूं, है ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आपने लिख लिया. मैं इसके हटा रहा हूं, मुझे थोड़ा और बड़ा वेसल बनाना चाहिए ताकि अपन थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए कि हमको क्या करना है. मैं क्या करूंगा, एक थोड़ा बड़ा वेसल बना लेते हैं. ये अपने लिए आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस. आइडियल गैस होगा तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, है ना. तो अपन कहेंगे भाई इसमें अगर आप आइडियल गैस बोल रहे हैं तो लो प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर.
ठीक है, तो आइडियल गैस में क्या होता है, गैस पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऐसे होता है। There is no force of attraction or repulsion between the gas particles, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ, अगर अपन चेक करें तो अपन कहेंगे भाई आइडियल गैसेस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल ना, इसका मतलब आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि जब तक गैस पार्टिकल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा। सो आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, हाई टेम्परेचर ना, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, वो मूव करेंगे। सो दीज पार्टिकल्स व्हेन कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, हम बाहर से उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कोलिजन हो रहा है, कितना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है पर मीटर स्क्वायर, उसके हिसाब से हम उसका प्रेशर बता देते हैं, जैसे अपन ने पहले लिखा। अब होगा क्या, when the pressure increases, so when P increases and T decreases, the kinetic energy of gas particle decreases, the kinetic energy of gas particle है ना, kinetic energy of gas decreases। अब पार्टिकल लिखना जरूरी नहीं, गैस मॉलिक्यूल लिख ही लेते हैं, पार्टिकल या मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो होगा क्या, जब अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे ना तो पार्टिकल पास हो जाएंगे ऐसे। पार्टिकल अगर दूर होंगे तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, जब वो पास होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तभी तो अपन लिखते थे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r to the power of क्यूब, जबकि कोलम्बक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r to the power of 2 होता है। सो विल राइट दैट कि जब हम प्रेशर को, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, तो गैस का जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा वो ऐसा हो जाता होगा। मतलब जो गैस पार्टिकल होंगे, जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, प्रेशर अपन ने बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो उस केस में क्या होता है, ये गैस पार्टिकल एक जगह आ जाते हैं। कैसे, पूरा एक ऐसे स्पीयर जैसे बना लेते हैं इसके अंदर, और ऐसा कोई स्पीयर होता नहीं है, वो एक साथ ऐसे, मतलब मैं बना रहा हूं ताकि मुझे बनाने में इजी हो जाए, वो इस टाइप से एक दूसरे आसपास आ जाता है, एक दूसरे ऐसे आसपास पार्टिकल्स, मतलब वो एक ऐसे स्पेरिकल वे में आ जाएंगे उसके अंदर। तो अपन कहेंगे नहीं, ये बात मतलब कुछ समझ में नहीं आई कैसे हुआ। भाई हमने तो प्रेशर बढ़ाया, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया होगा, टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रेशर बढ़ाया तो पार्टिकल पास आ गए होंगे, और टेम्परेचर भी कम कर दिया तो उनका मूवमेंट भी स्लो हो गया, फिर तो वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रेशर बढ़ाने से जो फ्रेगमेंटेड इधर उधर थे ना पार्टिकल्स, वो एक जगह आके एक स्पेरिकल शेप ले लिया, उन्होंने अपन ने अस्यूम किया कि वो एक स्पेरिकल शेप ले लिया और पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल्स, मतलब अपन अज्यूम कर लें कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकता है, पार्टिकल की प्रेशर इतना बढ़ाएंगे कि वो ऐसे हो जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो सॉलिड है। तो फिर थोड़ा दूर करो इनको, तो अपन कहेंगे हो सकता है ये लिक्विड हो, तो और दूर करो इनको, तो अपन कहेंगे अब ये गैसेस हो सकता है, क्योंकि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, गैसेस में इंटर वो कंप्रेसिबल होते हैं ना गैसेस, तो पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही पास जा सकता है दूसरे पार्टिकल के, ऐसे नहीं हो सकता प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं लिक्विड ही बन गया, तो फिर हम पढ़ ही नहीं रहे लिक्विड को, नहीं हम सॉलिड पढ़ रहे, हमें तो उतना प्रेशर इंक्रीज करना है, हाई प्रेशर भी अज्यूम करेंगे तो हम उतना प्रेशर इंक्रीज करेंगे कि उसके लिक्विफिकेशन ना हो, तो पार्टिकल काफी पास आएंगे, अपन कहेंगे पास हो जाएंगे पार्टिकल्स, और पास आएंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो फिर ये खाली जगह का क्या करेंगे, भी तो खाली जगह है, तो अपन कहेंगे इस खाली जगह को ना इक्वली आप डिवाइड कर दो दोनों में, मतलब थोड़ा इसमें डिवाइड कर दो, थोड़ा इसमें डिवाइड, इस टाइप से आप डिवाइड कर दो, तो अपन कहेंगे अभी भी अपन को ये
क्लियर नहीं हुआ आपको कि मतलब कैसे डिवाइड करते हैं? हमने क्या किया, जैसे मान लो आपको अज्यूम कर लेते हैं कि एक क्लासरूम है। क्लासरूम हमारे लिए, क्लासरूम का जो वॉल्यूम है ना, वो अपने लिए वेसल का वॉल्यूम है। ठीक है, उस क्लासरूम में ऑब्वियस सी बात है, जिस जगह आप लोग बैठे होंगे, स्टूडेंट बैठे होंगे, स्टूडेंट जो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, वो गैस के लिए मूवमेंट वाला स्पेस थोड़ी होगा। वहां गैस मूव नहीं कर सकता जिस जगह स्टूडेंट्स होंगे। तो फिर कहेंगे स्टूडेंट तो गैस के ही पार्टिकल्स अज्यूम कर रहे हैं ना। गैस मतलब आपने क्लासरूम को बोला वेसल है, तो स्टूडेंट हमारे लिए पार्टिकल्स हो गए। अगर स्टूडेंट हमारे लिए पार्टिकल्स हो गए तो दे आर मैटर ना, पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जिस जगह स्टूडेंट होंगे वो स्पेस तो स्टूडेंट ने ऑक्युपाई किया ना, वो खाली जगह थोड़ी होगी मूवमेंट के लिए। वो तो हार्ड मास ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो अपन क्या कहेंगे, तो अब यहां पर हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम ये करते हैं, आपने तो आइडियल गैसेस में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। हमें कोई मतलब नहीं था कि कौन से पार्टिकल कौन सा क्या। आपने कहा वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 2 लीटर, हमने 2 लीटर अज्यूम कर लिया। अब ये आप नई थ्योरी बता रहे हो कि अब पार्टिकल का भी वॉल्यूम कंसिडर करो। तो ये कैसे कंसिडर करना है, मतलब वो है क्या, उसको क्या करें? तो एक बात ध्यान रखो, हमसे हमने आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। तो रियल वॉल्यूम क्या होता है भाई? अगर मैंने आपको ये दिया और मैंने आपसे कहा कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, अब ये नहीं कहना कि उसका कैप का ये वाला पार्ट इधर है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसमें कैप बोर्ड टूटा हुआ है, तोड़ दिया मैंने, ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तुम कहोगे ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ले लेता हूँ और कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो ये इसका कौन सा वॉल्यूम होगा? मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इसका वॉल्यूम 2 लीटर आया, इतना बड़ा है अपने पास सिलेंडर, इसको एज्यूम करते हैं, ये 2 लीटर आया इसका वॉल्यूम। तो क्या बोले, ये इसका आइडियल वॉल्यूम है या रियल वॉल्यूम है? तो अपन कहेंगे आज तक तो आप यही बताते हैं कि भाई जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम लेके सॉल्व कर दो क्वेश्चन, इसके अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो ये जो वॉल्यूम है ना इसका वेसल का, ये रियल वॉल्यूम है। ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे कोई भी बॉक्स दो, उसका रियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? जो दिख रहा है वही रियल वॉल्यूम है। तो फिर आइडियल गैसेस में आप क्या करवाते हैं? वो क्या गलत था? गलत नहीं था वो, लेकिन अभी अपन अपना सेंटेंस करेक्ट करेंगे, चेंज नहीं कर रहे, करेक्ट करेंगे। एक्चुअली में जो आइडियल वॉल्यूम होता है ना, अब आप इसको हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई अपन से पूछेगा व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम तो अपन बताएंगे आइडियल वॉल्यूम इज कंप्रेसिबल वॉल्यूम। व्हाट इज कंप्रेसिबल वॉल्यूम? द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द वेसल। empty space inside the vessel, that is called ideal volume। तो फिर अगर empty space, आपने कहा कि empty space inside, इसके अंदर तो गैस भी है, तो empty space तो आपने फिर वॉल्यूम ऑफ द वेसल ही ले लिया अभी तो पहले अपन क्या बोल रहे थे कि भैया आइडियल गैसेस जब हैं तो उसमें प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। पार्टिकल का वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल था, क्योंकि मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? वॉल्यूम इस पे लो प्रेशर की वजह से पार्टिकल दूर दूर है। मैं हर एक पार्टिकल का मैंने पोस्टुलेट लिखा अपन ने
कि द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इन आइडियल गैसेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। मतलब आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, आप नेग्लिजिबल बता रहे हो, आपने ये नहीं कहा कि वहां गैस नहीं होता, आप वहां नेग्लिजिबल की बात कर रहे हो, आपने ये नहीं कहा कि वहां गैस नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया वो बहुत छोटा आया वेसल के कंपैरिजन में, तो अपने का नेग्लेक्ट करता उसको। तो अगर इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करूंगा तो बचा क्या वॉल्यूम, मेरे पास वेसल का वॉल्यूम बचा, उसी को लेकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और हमेशा यही करना है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि एक क्लासरूम है, उसमें ये स्टूडेंट है, ये काफी दूर दूर है, और ये इतना बड़ा हॉल था जिसमें स्टूडेंट बैठे थे कि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल था, वॉल्यूम ऑफ द वो ऑडिटोरियम है जिसमें वो बैठे हुए थोड़ा सा स्टूडेंट। अब अगर मान लो वो सारे के सारे स्टूडेंट उस ऑडिटोरियम में एक साथ आ जाए ग्रुप बना के, तो फिर तो उनका वॉल्यूम आ जाएगा ना भाई। जिस जगह ये पार्टिकल होगा वो कंप्रेसिबल वॉल्यूम नहीं है, ये तो हार्ड स्फीयर, इट इज जस्ट मैटर ना भाई। आपको वो स्पेस माइनस करना चाहिए ना। अगर आप आइडियल वॉल्यूम बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए भी मुझे आइडियल वॉल्यूम ऐसे बोलना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस इन सबके पार्टिकल के वॉल्यूम कैलकुलेट करो, उनको माइनस करो। क्यों? आपने बताया ना आइडियल वॉल्यूम इज कंप्रेसिबल वॉल्यूम, मतलब जो ये खाली जगह दिख रही है ना, ये आइडियल वॉल्यूम है, जहां पर ये पार्टिकल है वॉल्यूम में काउंट नहीं होगा। तो मैंने कोशिश की थी ना कैलकुलेट करने की, बट इट्स वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, वो वॉल्यूम ले लिया वेसल का और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बट अभी जब आपने प्रेशर को हाई किया तो ये पार्टिकल सारे एक साथ आ गए और उन्होंने एक स्फीयर बना लिया, तो ठीक है। अपन कहेंगे अगर आप इन सब का वॉल्यूम कलेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हो तो आइडियल वॉल्यूम बाकी खाली जगह को बता दो, आप रियल वॉल्यूम ले लो, वेजल का वॉल्यूम, और उससे माइनस कर दो इन सब का वॉल्यूम, तो विल गेट दैट रियल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल, है ना। रियल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये कह रहे हो मुझसे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो रियल वॉल्यूम है, लो भाई मैंने लिख लिया ये रियल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, इसको वी रियल जैसे लिख देते हैं अपन, वी आर है। इससे मैं इनका वॉल्यूम माइनस कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तब तो बताऊंगा ना ये आइडियल वॉल्यूम है। मतलब आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू रियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दीस पार्टिकल्स इन द वेसल, दीस पार्टिकल्स आर हार्ड स्फीयर्स, मुझे इसको माइनस करना होगा बिकॉज आपने क्लियरली बताया मुझे व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम, तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम होता है भाई। क्लासरूम में जहां अपन जैसे एक क्लासरूम में अपन बैठे, अपन सारे पार्टिकल्स जो अपन पार्टिकल्स हो गए, तो जिस जगह कोई स्टूडेंट होगा वो कंप्रेसिबल वॉल्यूम थोड़ी हो सकता है, वो तो हार्ड स्फीयर है, दैट इज अ मैटर, उसको थोड़ी बोलेंगे अपन कंप्रेसिबल वॉल्यूम। तो अपन क्या करेंगे, क्लासरूम के वॉल्यूम से हम सबका वॉल्यूम माइनस कर दो जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, अगर हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है तो कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसको अपन लिखते हैं बी से डिनोट करते हैं अपन, ये वन रोल कांस्टेंट हो जाता है कि भाई हर एक गैस का एक वॉल्यूम पर्टिकुलर वॉल्यूम बन जाएगा, उसको अपन वी लिख लेते हैं। तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, वो अपन चेक कर लेते हैं कैसे करना है, कि इनका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैसे मतलब रैंडमली है या कोई मतलब सिमेट्रिक होगा। हाँ वो सिमेट्रिक होगा, मैंने बनाया वैसे, इसलिए मैंने वो थोड़ा डैश डैश करके स्फीयर जैसे बना दिया कि वो स्फेरिकल होगा। वो रैंडमली मैंने थोड़ा लिख लिया, बट वो कैलकुलेट कैसे करेंगे मतलब बी जो आप बता रहे थे कि वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन देख लेंगे कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता चल गया, रियल वॉल्यूम मतलब वेसल का वॉल्यूम, और आइडियल वॉल्यूम का मतलब है कंप्रेसिबल वॉल्यूम, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर मुझे रियल वॉल्यूम बड़ा होता है कंप्रेसिबल वॉल्यूम से, ऑब्वियस सी बात है अपन आइडियल वॉल्यूम से रियल वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है बड़ा, इसको देख के तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब एक बार अपन इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं,
फिर उसके बाद अपन एक अपना फॉर्मूला बना लेंगे। अपन आइडियल, अब ये तो कर लिया अपन ने कि हमें वी आइडियल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इसमें करेक्शन कर रहे हैं ना अपन। तो इसमें क्या करेक्शन आएगा, रियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस, ये करेक्शन होगा जो अपन उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपने पास रियल गैस का इक्वेशन बन जाएगा। तो पहले अपन ये वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल जो लिखा है आपने माइनस वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, वो तो कैलकुलेट कर ले, कैसे बताए। तो चलो देखते हैं। अब ये पार्ट हमें समझ में आ गया कि भाई ये क्या है। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको हटा लूंगा, मुझे स्पेस थोड़ा और चाहिए। अपन देखते हैं, यहाँ लिखते हैं वंडरफुल असम्पशंस। assumption, उसने क्या एज्यूम किया, फॉर बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स मतलब दो मॉलिक्यूल को ही कोलाइड करना है। उसने कहा दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, वो तो अपन को पता ही है, ये लिखना है अपन को। The excluded volume for two molecules, volume for two molecules will be equal to, अब अपन क्या करेंगे, उसने अपन को बताया। अब मुझे स्पेस चाहिए होगा भाई, मैं यहाँ हटाऊंगा, इसको तो हटा ही दो, कोई जरूरत ही नहीं इसकी। तो अपन को पता है अगर आइडियल गैस है तो क्या है ना, उनको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसको अगर आप चाहो तो बनाते रहने दो, चलेगा। इसको हटा देते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, अपन यहाँ लिखेंगे। लेकिन पहले लिख लेते हैं कि आप बता क्या रहे हो, मॉलिक्यूल्स को कैसे बताओगे। अब होता क्या है कि भाई हमारे पास ना ऐसे पार्टिकल्स हैं, भाई अगर मैंने कहा नाइट्रोजन गैस, तो सभी नाइट्रोजन गैस के साइज तो एक जैसे होंगे ना, थोड़ा बड़ा बन गया शायद, चलेगा ना, सबके पार्टिकल के साइज एक जैसे अपन अज्यूम कर लेंगे, सबके साइज एक जैसे। अगर नाइट्रोजन गैस है तो सबके साइज एक जैसे होंगे। अपन क्या करेंगे, होता क्या है ना कि अगर दो पार्टिकल्स ले लेते हैं है ना, कोई भी दो पार्टिकल लेते हैं अपन, तो ऐसे अगर दो पार्टिकल बनाओगे ना तो ये सॉलिड है, ये थोड़ा दूर होगा तो लिक्विड है, और दूर होगा तो गैस है, और दूर, अब यहां से गैस है तो फिर उसके बाद कितना भी दूर करो दोनों को वो गैस ही रहेंगे। व्हाट वंडरफुल सेज, कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो पार्टिकल को कितना दूर ले जाएं तो वो गैसियस स्टेट में आ जाए। भाई दो पार्टिकल अगर दूर दूर है, काफी दूर दूर है, अपन ने कहा ये पास में आएंगे तो इनमें कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्शन होगा, ये कैसे पता चलेगा मुझे। तो इसलिए अपन ने लिखा वंडरवॉल अजम्पशन। उसने क्या अजम्पशन बताया अपन को, तो उसने कहा देखो भाई ऐसे तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है वो अपन ये नहीं बता सकते, इतना दूर करो तो लिक्विड है, या इतना दूर करो तो लिक्विड है, या इतना दूर करो तो लिक्विड है। वैसी गैसेस के लिए इतना दूर करेंगे तो गैस है, या इतना दूर करेंगे तो गैस है, या इतना दूर करेंगे तो गैस है, तो ऐसा तो नहीं बता सकते। तो उसने अपन को क्या किया, उसने अपन से कहा कि आप ना ऐसे गैसेस ले लो, ऐसे बना लो गैसेस, हाई प्रेशर सारे गैसेस को ऐसे बना दो, ऐसे ठीक है ना, आप ऐसे गैसेस को बना दो। और उसने अपन से कहा कि अगर आप इनके दो पार्टिकल के बीच में से एक पार्टिकल को निकाल दो, अब अपन तीन ले लेते हैं ऐसे जैसे अपन ने बना रखे। तो उसका कहना है कि अगर आप इनमें से ऐसे बना लो आप, तो ये तो सॉलिड है, लेकिन अगर इनमें से बीच से एक पार्टिकल निकाल देते हो आप, तो ये इन दोनों का लिमिट होगा गैसियस स्टेट में आने का। मतलब अगर ये इससे पास आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इससे दूर जाएंगे तो गैसियस स्टेट में ही रहेंगे। क्या कहा उसने, उनसे कहा कि आप ना ऐसे गैसेस पार्टिकल को आपस में स्टिक कर दो तो ये सॉलिड है।
तो उसने कहा अगर दो पार्टिकल के बीच में से एक एक पार्टिकल निकालते जाओ, एक एक पार्टिकल के बीच में से निकालते जाओ, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना डिस्टेंस पे पार्टिकल होंगे कि ये गैसियस स्टेट में रहेंगे। मतलब इससे पास आएंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे, इससे दूर जाएंगे तो गैसियस स्टेट में ही रहेंगे। मतलब दिस इज अ लिमिट। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे आप सारे ऐसे बनाते जाओ, आपस में स्टिक है, दैट इज अ सॉलिड। तो वो कहता है कि भाई लिक्विड का क्या, तो अपन कहेंगे कैसे बनाओ लिक्विड के लिए, पार्टिकल को ऐसे बनाओ लिक्विड के लिए क्या, इतना होगा तो लिक्विड होगा, या इतना होगा तो लिक्विड होगा, थोड़ा और दूर बना देता हूं, ऐसे होगा तो लिक्विड होगा। तो उसने कहा देखो भाई लिक्विड की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये आपको बता सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो अगर इसी के साइज के बराबर का गैप है, तो वो गैसियस स्टेट में रहेंगे ये दोनों पार्टिकल्स। उससे पास होगा तो लिक्विड होगा, उससे दूर रहेगा तो गैसियस स्टेट में रहेगा। हमने भी वही अज्यूम कर लिया बाइक मोलिक्यूलर कोलिजन लेके। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये ना आप इसको हटा, इसको हटा दो। मतलब अगर मैंने इसको निकाला दोनों के बीच में से, तो ये दोनों पार्टिकल अपने मिनिमम डिस्टेंस पे हैं जब वो गैसियस स्टेट में रहेंगे। तो अपन ने कहा ठीक है, ये वाले पार्ट को ना जो खाली जगह बनाना, अब ये खाली जगह आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो, डिवाइड कर दो दोनों में। इसका मतलब है कि ये आधा पार्ट इसको दे देते हैं, आधा पार्ट इसको दे देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को गैसियस स्टेट में रहना है तो आपस में मॉलिक्यूल टच थोड़ी कर सकते हैं, वो तो सॉलिड होगा। तो फिर तो फिर उसने अपन को बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन, उसने कहा कि आप सिर्फ दो मॉलिक्यूल का कोलिजन अज्यूम करना किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप ऐसे अज्यूम कर लो या ऐसे अज्यूम कर लो या ऐसे अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन ही अज्यूम करना। तो इसको डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और मैंने कहा ये खाली जगह है दोनों के लिए। तो इसका रेडियस तो हार्ड स्फीयर होगा, इसका भी रेडियस हार्ड स्फीयर होगा। तो ये वाला अपन को एक बात पता है फिर कि अगर इसका डिस्टेंस आर है और इसका भी डिस्टेंस रेडियस आर है, तो अपन को पता है कि ये बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस होगा, जो भी ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम होगा, उसको डिवाइड बाय 2 करके एक का वॉल्यूम आ जाएगा, अपने पास एक का खाली स्पेस आ जाएगा उसके अराउंड। भाई इसके अराउंड एक खाली स्पेस बनेगा ना इसका, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, इसका जो खाली स्पेस बनेगा वो इतना ही बनेगा ना जितना इधर है। थोड़ा ज्यादा बन गया ये वाला, है ना, वो समझ में आ गया आपको क्या करना है, ऐसे बना। तो ये जो खाली स्पेस है, ये तो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये वाला ये तो एक्चुअल वॉल्यूम है, इसको कहेंगे एक्चुअल वॉल्यूम। ये वाला वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है वो खाली स्पेस है जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, बिकॉज अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो ये फिर लिक्विफाई हो जाए, फिर लिक्विड स्टेट में रहेंगे वो। तो ये पार्टिकल्स जो होंगे ना, ये वाले पार्टिकल्स, मतलब इसका ये खाली स्पेस अपन डिवाइड कर देंगे, इसको भी ये खाली स्पेस ऐसे डिवाइड कर देंगे, मतलब ये अपने उधर रहेगा, ये अपना इधर रहेगा। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब ये एक सॉलिड स्फीयर इतने स्पेस में किसी को अंदर नहीं आने देगा, मतलब हर एक पार्टिकल जो गैसेस में रहेगा ना, वो हर एक पार्टिकल में ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रहेंगे। मतलब यहां भी अपन लिखेंगे तो एक ऐसे बनाना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल ऐसे रहेगा, जबकि उसका एक्चुअल वॉल्यूम ये ऐसे ही रहेगा, तो वो गैसियस स्टेट में। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। तो उसने कहा कि भाई अब उसका अजम्पशन था, मैंने इसलिए पहले ही लिखा हुआ अजम्पशन है भाई, वंडरवॉल अजम्पशन अपन बताएंगे कि दिस इज द वंडरवॉल अजम्पशन। तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है, ये था ना खाली स्पेस दोनों के बीच में, ये वाला था, इसको डिवाइड करना है ना दो में, तो ठीक है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, बड़े वाले स्फीयर डिवाइड बाय 2 करके एक का वॉल्यूम बता दो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम।
तो अपन ने लिखा द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू ये बड़ा वाला स्फीयर, अपन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वो जो बड़े वाला स्फीयर है उसका जहां पर आर को अपन क्या ले लेंगे, वेयर आर विल बी इक्वल टू, दैट इज वेयर आर विल बी इक्वल टू 2 स्मॉल आर, ऐसे कर देता हूं 2r। तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है भाई लिख देता हूं मैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 2r क्यूब ना। सो अपन लिखेंगे दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू, इसको 8r क्यूब कर लेता हूं, therefore excluded volume for two molecules volume for two molecules will be equal to, that is 4/3 pi 8 into लिख लेते हैं ना, 8 को बाहर लिख लेते हैं क्योंकि 4 that is 8 into 4/3 pi r क्यूब ये आ जाएगा। तो फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वन मॉलिक्यूल अगर लिखे अपन तो ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा 4 into 4/3 pi r क्यूब। दिस इज दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। आपको याद होगा अपन ने पहले भी वंडरवॉल रेडियस पढ़ा हुआ है, एंड वंडरवॉल रेडियस इज मैक्सिमम। द रीजन इज बिकॉज यहाँ तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, ये उसका कैलकुलेशन था। मतलब वंडरवॉल रेडियस अपन को क्या लेना है, इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो था ना वो 4/3 पाई आर क्यूब है, और इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू 4 into 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अपन ने क्या किया, अब ये तो एक पार्टिकल के लिए है ना, तो इसके लिए ये टोटल जो है ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम जो है ना ऑफ द पार्टिकल व्हिच आर प्रेजेंट देयर, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक कांस्टेंट से, दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल कांस्टेंट p, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। और उसमें अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं n भी लिख लेते हैं उसको। n भी क्यों, वो इसलिए बिकॉज ये बताओ ना आप, अगर 1 मोल ऑफ पार्टिकल है तो ये 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा, तो b विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम तो गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स से ही कोरिलेट करेंगे, हम एक गैस पार्टिकल के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो सैंपल ऑफ गैस के लिए पढ़ते हैं। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स, वी नो दैट। सो b इज इक्वल टू होता है 4 into 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na मतलब 1 मोल के लिए लिख लिया, b रिप्रेजेंट करेगा। b is the volume occupied by 1 mole of particles, where b is वंडरवॉल कांस्टेंट। भाई हमें कोई कांस्टेंट तो देना ही था ना कि हर एक गैस के लिए, तो b वंडरवॉल जो हमें वंडरवॉल ने दिया हमने वो कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। तो b is वंडरवॉल constant and signifies the volume occupied by 1 mole of gas molecules by 1 mole of gas molecules. That is the B. मैं इसको हटा देता हूँ, ये अपने लिए B हो जाएगा। तो ठीक है, we'll write that. Therefore, I can say that V ideal, क्योंकि हम तो जनरली 1 मोल के लिए पढ़ते हैं ना, V ideal will be equal to V real minus NB. B is for 1 मोल। अब आप बता दो कितने मोल्स पार्टिकल्स हैं, मैं उसको लिख देता हूं वैसे, where n is the number of moles. This is the volume correction. ये अपना वॉल्यूम करेक्शन।
दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन. This is called the volume correction. Right? तो ठीक है भाई, मतलब रियल गैस के लिए अपन ने वॉल्यूम क्या करेक्ट किया वो देख लिया, अपन ने चेक कर लिया क्या कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर आपको रियल गैस इक्वेशन लिखना है तो आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम आइडियल जहां पर लिखा होगा पीवी, वी की जगह मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो रियल वॉल्यूम का इक्वेशन, रियल गैस का इक्वेशन बन जाएगा वॉल्यूम के टर्म्स में. अब हमको चाहिए नेक्स्ट इज we can write that is we can say pressure correction. अब प्रेशर करेक्शन भी तो करना था, है ना? प्रेशर करेक्शन. अब जैसे अपन ने वॉल्यूम करेक्शन किया वैसे प्रेशर करेक्शन भी देखते हैं. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो P और V दोनों में करेक्शन आ जाएगा अपने पास. तो अपन प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं. अगेन आइडियल गैस अपन वैसे ही बना लेते हैं जैसे अपन ने बनाया था कि भाई आइडियल गैस का प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस is calculated by the force by which particle collide on the wall of the container. Particle collide on wall of container. On wall of container. ये हो जाएगा. तो अपन कहते हैं भाई इनमें दिस इज अ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. आइडियल गैस होता है ना, तो जिस फोर्स से ये कोलाइड करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर में पार्टिकल्स दे आर अपार्ट, जिस फोर्स से ये कोलाइड करेगा अपन कहेंगे ठीक है भाई उससे अपन प्रेशर कैलकुलेट. बट व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, जब प्रेशर हाई होता है, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, अपन कहेंगे एट हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे तो पार्टिकल काफी पास हो जाते हैं, राइट ना. द गैस पार्टिकल विल कम नियरर टू ईच अदर. गैस मॉलिक्यूल्स comes close to each other, है ना, close to each other, है ना, they will come close to each other. तो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी पास आ जाते हैं. अगर गैस पार्टिकल comes very close to each other, we are able to write that कि भाई इस केस में क्या होगा, ये पार्टिकल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. भाई आइडियल प्रेशर क्या होता है, तो अपन कहेंगे देखो भाई आइडियल प्रेशर का मतलब है कि जब कोई पार्टिकल वॉल पे कोलाइड करेगा तो वॉल पे कोलाइड करने से जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड आइडियल प्रेशर. अभी पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता आपस में, उनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता इसमें. दैट्स व्हाई वी से दैट आइडियल गैस डजंट लिक्विफाई. तो अपन कहेंगे इस केस में आइडियल प्रेशर जैसे अपन ने लिखा हुआ है दैट इज, तो आइडियल प्रेशर तो कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर से होता है. अब अगर कोई और चेंजेस आ रहे हैं तो आप रियल गैस के लिए बता दो मुझे, बिकॉज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस डजंट बिहेव एज आइडियल गैस. गैस will behave as ideal gas only at low pressure and high temperature. Here the pressure is high. तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, द गैस पार्टिकल विल बी लाइक दिस. अब अपन हाई प्रेशर पे बात करते हैं कि कैसे गैस पार्टिकल्स होंगे. अपन क्या करेंगे, गैस पार्टिकल्स एट हाई प्रेशर अपन ऐसे बताएंगे. जब प्रेशर हाई होगा तो पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है इधर कोलाइड तो करेंगे ही करेंगे वॉल पे. हाई प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कोलाइड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया होगा, राइट.
तो अपन क्या कहेंगे कि वॉल पे अगर कोलाइड करेंगे प्रेशर, ये पार्टिकल्स वॉल पे कोलाइड कर रहे होंगे तो इनसे जो प्रेशर जनरेट होगा वो तो मेरे लिए आइडियल प्रेशर ही होगा, पी आइडियल। ये पी आइडियल हो गया, क्योंकि वॉल पे अगर कोलाइड करेगा तो जो भी आपने बताया कि अगर जो भी पार्टिकल्स है, अगर कोई भी पार्टिकल कोलाइड करेगा वॉल पे तो उससे जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड आइडियल प्रेशर। लेकिन जब लो प्रेशर था तो पार्टिकल बहुत दूर थे, लेकिन जब हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल पास होंगे। तो इधर ये पार्टिकल पास आ जाते हैं, ये पार्टिकल पास आ जाते हैं। तो अपन ने एज्यूम किया कि एक लेयर ऐसे रहा होगा और भी लेयर होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब अगर ये पार्टिकल पास पास है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो जब ये पार्टिकल इस पे कोलाइड करने जा रहा होगा तो ये वाला पार्टिकल उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। भाई यहां तो इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं था ना, तो वो तो फ्रीली जाके अटैक कर रहा था, मतलब वॉल पे कोलाइड कर रहा था। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये कोलाइड करने वॉल पे जा रहा है लेकिन ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, अपन कहेंगे फिर तो इसका कोलिजन कम हो जाएगा। इसका मतलब है ये आइडियल प्रेशर कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगा, तो अपन कहेंगे जितना फोर्स से ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अंदर की तरफ पुल कर रहे होंगे उतना कम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अगर जितना फोर्स से ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो अपन कहेंगे फिर आइडियल प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा प्रेशर। वो कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल प्रेशर है ना, मतलब जो प्रेशर होगा हमारे पास, तो अपन उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, उसको अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद अपन उसको रियल लाइफ में लेके आते हैं। इधर पता क्या हो रहा है, ये फ्रीली मूव करके कोलाइड कर रहा है, मतलब ये ऐसे हो गया कि अपन ने क्या किया, अपने दोस्त को एक ऐसे बढ़िया पंच बनाया और दिया घुमा के, क्या होगा अपन को पता है। और दूसरी बार क्या हुआ, जब मैं उसको मार रहा था तो किसी ने मुझे पीछे से ऐसे रोक दिया, मेरा हाथ को हट लाया ना, थोड़ा सा रोक दिया, रेजिस्ट किया, तो फिर उसको पंच अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा मतलब अपन को मजा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले मैंने उसको बढ़िया घुमा के दिया था वो मेरा रियल पंच था, आइडियल आइडियल नॉट रियल, आइडियल पंच। तो अपन से पूछेंगे ना तुम्हारा आइडियल पंच क्या है, अभी मार के दिखाता हूँ, ये मेरा आइडियल पंच। तो रियल क्या है भाई, रियल तो वो हुआ ना कि अगर किसी ने स्टॉप नहीं किया, तो रियल और आइडियल एक ही बात है, लेकिन अगर किसी ने पीछे रोक लिया मेरा हाथ तो क्या होगा, वो रियलिटी में क्या कहेगा, कुछ नहीं लगी मुझे, नहीं लगी, मारा था तुमने, उसने रोक दिया, नहीं लगी, दैट इज रियलिटी। तो मेरा आइडियल पंच क्या है, जब किसी ने नहीं रोका और मैंने घुमा के उसको जमा दिया, वो आइडियल पंच। तो अपन ने कहा भाई अगर किसी ने मेरे आइडियल पंच को रोका तो जितने फोर्स से उसने रोका, तो रियल पंच में आप मेरा वो रोकने वाला पार्ट ऐड कर दो, तो मेरा आइडियल पंच बन जाए। आइडियल पंच तो वही है ना, किसी घुमा के दिया, लो भाई ये मेरा आइडियल पंच। इसका मतलब है कि अब पहले तो ये फ्रीली कोलाइड कर रहा था तो आइडियल पंच था, फ्रीली ना जमा के दे रहे थे अपन, वो आइडियल पंच है अपना, बढ़िया। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब किसी ने रोका तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जितने फोर्स से उसने रोका उसको ऐड कर लो, तो आइडियल पंच बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो आइडियल प्रेशर होगा अपने पास, तो अपन को बताएंगे कि भाई अपने पास क्या होगा आइडियल पंच, अपन इसको ऐसे प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि अब तो ये स्टॉप हो रहा है ना, स्टॉप हो रहा है तो आइडियल तो नहीं हो पाएगा। तो अपन कहेंगे भाई अब ये रियल प्रेशर में आ गया, क्योंकि जो कोलिजन ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर से होता है उसको अपन कहते हैं क्या, आइडियल पंच। लेकिन आइडियल तो तब कहेंगे ना जब कोई उसे रोकेगा, अगर कोई रोक रहा है तो फिर ये कहेगा भाई मुझे नहीं लगी, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है, ये रोक दिया उसने तो जो कोलाइड हुआ वो रियलिटी में उसको नहीं लगा, तो अपने लिए रियल पंच हो गया। तो इधर जो है ना टोटल जो आइडियल होगा ना, अपन के आइडियल प्रेशर विल बी इक्वल टू
रियल प्रेशर, इस रियल प्रेशर में जो कोलाइड हो रहे हैं उससे अपन को रियल प्रेशर मिला, प्लस जितना इसने फोर्स से उसे पीछे पुल किया उसको ऐड कर दो, उसको अपन कहेंगे प्रेशर करेक्शन। जैसे अपन ने वॉल्यूम करेक्शन किया था ऐसे अपन ने प्रेशर करेक्शन कर लिया। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, रियल तो वो हो गया जो उसे अपन ने मारा था और किसी ने रोका था, तो रोकने वाले पार्ट को आप इसको बताने वाले हो, और रियलिटी में जो उसको लगा वो ये है, दोनों का सम अप किया तो मेरा आइडियल पंच बन गया। ये मेरा आइडियल पंच आप बताने। अब अगर मुझे ये बता दो आपकी ये रोकने वाले पार्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसमें लिख के अपना आइडियल प्रेशर को बता दूंगा कि रियल प्रेशर प्लस ये होता है। क्या से द आइडियल पंच विल बी इक्वल टू रियल पंच प्लस द फोर्स बाय व्हिच इट हैज बीन स्टॉप्ड। तो अपन क्या करेंगे, अब इस पे आते हैं। ये तो अपन को समझ में आ गया कि भाई आइडियल और रियल प्रेशर में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। आइडियल मतलब फ्रीली उस पर कोलाइड कर रहा है, वो आइडियल पंच है मेरा। और रियल पंच मतलब किसी ने रोका, तो जितने फोर्स से रोका जो उसको लगा वो रियल था, और जितने फोर्स से रोका उसको ऐड कर दो तो मेरा आइडियल पंच बन जाएगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसमें क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब होता क्या ना, इसमें ना एक और लेयर आएगा, एक और लेयर होगा, जिससे कि अपना ये वाला कोलाइजन डिस्टर्ब होगा। बिकॉज व्हाट हैपन ना, जैसे सेंटर में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल तो सभी तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहा होगा। भाई एक पार्टिकल अगर मान लो ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, 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 तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। भाई अगर इक्वली सभी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे, इक्वली एंड सिमेट्रिकली, तो अपन कहेंगे उसका फोर्स जीरो। और फोर्स जीरो का मतलब उसका प्रेशर जीरो। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, अपन बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो अपन बता दें। तो अपन क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, तो जो पार्टिकल मतलब वॉल से दूर होंगे, अंदर की तरफ होंगे, उनके रिजल्टेंट फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होते हैं, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब कौन करेगा, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा फर्स्ट लेयर, उसके बाद अगेन द अजम्पशन, वन ट्रिपल अजम्पशन। वो कहता है कि कम से कम दो लेयर तो इसको अफेक्ट, इसके कोलिजन को अफेक्ट करेंगे। भाई इसके आइडियल कोलिजन को कम से कम दो लेयर अफेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला लेयर इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला लेयर भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फिर इस केस में ये दोनों लेयर जो है वो मिलके जितना इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपन को उतना कंसिडर करना होगा। जितना दोनों मिलके उसको अट्रैक्ट करेंगे उतना अपन को अट्रैक्ट करना होगा। तो अपन ने लिखा ये प्रेशर, इसमें करेक्शन लिखने वाले हैं कि कितना फोर्स से वो अट्रैक्ट किया अंदर की तरफ, तो मैंने इसको रियल प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन लिख दिया उधर, जो करेक्शन अपन करने वाले हैं। इसको अपन ने जैसे वॉल्यूम करेक्शन किया था ना एनबी, वैसे ही अपन इसको लिखने वाले हैं प्रेशर करेक्शन। ऐसे उसको प्रेशर करेक्शन, राइट। तो चलो देखते हैं अपन क्या करेंगे। ठीक है भाई, तो अब अपन को, अब अपन अपने जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं उन पे आ जाते हैं। अपन क्या कहेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वेसल अगर बड़ा होगा तो ज्यादा पार्टिकल कोलाइड कर रहे होंगे, छोटा होगा तो कम पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इस लेयर का प्रेशर n बाई वी ले लेते हैं अपन, इस लेयर से भी प्रेशर n बाई वी ले लेते हैं अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जो प्रेशर करेक्शन अपने पास आएगा इसमें एक लेयर के लिए फॉर द फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर के लिए n बाई वी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अपन लिख लेते हैं प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी। वैसे तो अपन को ऐसे भी पता था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, वो इट इज। हाँ तो डेंसिटी भी तो आप यही लिख रहे हो, वेट अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक ही पार्ट को यूज करते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आल्सो।
तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इन दोनों लेयर की वजह से अपन दो लेयर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको एक बार n/v into n/v ले लेते हैं. So pressure will be directly proportional to m square upon v square because हम एटलीस्ट 2 लेयर को तो कंसीडर करना ही होगा. मतलब वंडरवॉल अजम्पशन है, अपन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वंडरवॉल बोल रहे हैं कि थर्ड लेयर से इस लेयर पे जो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपके जो पंच मारने पे थर्ड लेयर का जो इफेक्ट होगा वो जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है पिक्सल में. तो एटलीस्ट हमें दो लेयर को तो कंसीडर करना ही होता है, क्योंकि ये लेयर भी डिस्टर्ब होगा ना इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर भी अट्रैक्ट होगा, उससे भी इंटरेक्शन होगा इसका, तो इसका भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन ऑल डायरेक्शन वो डिफरेंट होगा इसके कंपैरिजन में. तो अपन सिर्फ दो लेयर को कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू वन वंडरवॉल. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमारे लिए प्रेशर करेक्शन जो हो गया, सो प्रेशर करेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, जो करेक्शन आपने लिखा ना यहाँ पे प्रेशर करेक्शन, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ए ले लेता हूं. A is what? Now again there is a constant called van der Waal constant, where A is a van der Waal constant for pressure correction. B is a van der Waal constant for volume correction. तो अपन लिख सकते हैं भाई P ideal will be equal to P real plus A n square upon V square. ये रियल वाले भाग A n square upon V square. This is the equation what we get. ये अपने पास सेकंड इक्वेशन. तो अपने पास आया, अपने दोनों को लिख लेते हैं अपन भाई, व्हाट इज प्रेशर करेक्शन, व्हाट इज वॉल्यूम करेक्शन, है ना. तो अपने पास इक्वेशन 1 and 2 आ गया. तो अपन लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन in ideal gas equation, correction in ideal gas equation, ideal gas equation at constant temperature, at constant temperature we get, at constant temperature we get. तो अपने पास क्या कहता था, P ideal V ideal is equal to nRT. ये तो आइडियल गैस था, इसमें करेक्शन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें मैं करेक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं. तो V आइडियल की जगह पर तो क्या लिखना है, V रियल माइनस एन. अब अपना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन रियल, मतलब V के नीचे इधर R लिखा है मतलब रियल वॉल्यूम की बात कर रहे हो, उधर लिखा है मतलब रियल, इधर I लिखूंगा तो सिर्फ आइडियल की बात कर रहे हो. V आइडियल क्या हो जाएगा अपने लिए, अपन ने लिखा ये तो P आइडियल लिखना था अपन को यहाँ पर, तो वो क्या था P रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो अपन रियल की बात कर रहे हैं तो अपन को रियल लिखना पड़ेगा. ये आया अपने पास, एंड वी रियल माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. दिस इज रियल गैस इक्वेशन और वंडरवॉल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन और वंडरवॉल गैस इक्वेशन और van der Waals gas equation as it is explained by van der Waal ना, तो अपन उसको van der Waal equation भी बोल सकते हैं. So this is real gas equation और van der Waal gas equation for 1 mole of a gas. अपन m की जगह 1 लिख देंगे तो 1 mole of a gas हो जाएगा. So that will be for 1 mole of a gas. Mostly अपन जो डिस्कस करेंगे that will be for 1 mole of a gas. So we are able to write that for 1 mole of a gas. 1 mole of gas, we can write that P plus a n square upon, अब 1 मोल होगा तो a upon b स्क्वायर लिख लें और ये मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 1 मोल के लिए, मोलर वॉल्यूम माइनस एन बी
तो एक्वा डालेंगे तो बी हो जाएगा RT. It will be like this for one gas, where A is van der Waals constant for pressure correction. For pressure correction, and B is van der Waals constant for volume correction. Volume correction. That is how we can write. ये आपका रियल गैस इक्वेशन है. पर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, व्हाट इज यूनिट ऑफ ए. Unit of A and B. Now we know that volume correction is equal to NP. अब वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही होगा, चाहे वॉल्यूम करेक्शन लिखो या वॉल्यूम लिखो, में क्या फर्क पड़ता है. मतलब B will be equal to V upon N. मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ लीटर अपॉन मोल ना, तो लीटर पर मोल. कई बार हमको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, वॉल्यूम करेक्शन फॉर 2 मोल ऑफ अ गैस इज गिवन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B. बता दें. फिर अपन लिख सकते हैं प्रेशर करेक्शन. P करेक्शन अपन ने क्या लिखा था, दैट इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. अब तो लिखा हुआ है अपने पास. वॉल्यूम करेक्शन था, ये प्रेशर करेक्शन. तो अपन कहेंगे ए का यूनिट लिखना, तो ए विल बी इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. फॉर कैलकुलेशन अपन जनरली प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं, तो इसको एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, लीटर स्क्वायर ले लेते हैं वॉल्यूम, और ये पर मोल स्क्वायर ले लेते हैं. ये आ जाएगा. अब अपन तुम्हें याद होगा ना, बी का वैल्यू तो अपन को पता है क्या होता है, 4 into 4.3 pi r cube, and that is the volume occupied by 1 mole of a gas. हाँ तो है ना, वॉल्यूम फॉर 1 mole of a gas. इसलिए तो अपन B को बोल रहे थे कि B signifies the volume for 1 mole of a gas. लिखा ना, इसका यूनिट आ रहा है पर मोल, तो B is the excluded volume for 1 mole of a gas. That is B. अब देखो एडवांस में, जेई एडवांस में एटलीस्ट 2 टाइम पूछा गया, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, और ऑप्शन में लिखा होता है AN square upon V square represent the pressure correction for force of attraction. डिफरेंट ऑप्शंस बनाते हैं. मतलब डायरेक्टली अपन को फॉर्मूला से ही पूछ लेंगे, क्योंकि इसमें अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कैलकुलेशन काफी गंदा होगा. इसलिए कैलकुलेशन भी काफी छोटे छोटे बनाते हैं वो, कि अपन को इसमें मतलब प्रेशर करेक्शन पूछा है, AN स्क्वायर मतलब A का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर 0.5 मोल्स वॉल्यूम 2 लीटर्स, प्रेशर करेक्शन इज गिवन टू एटमॉस्फेयर. बता दो भाई कितना है A का वैल्यू, बता दो. इसलिए क्वेश्चंस कंसेप्चुअल पूछेंगे या छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछेंगे अपन से, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसमें उस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करें. जो अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्टली अपन से वही क्वेश्चन पूछेंगे. अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, वी गॉट दैट, दिस इज वन डायमेंशनल इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन इसमें अपन को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, P फिजिकल टू एनआरटी पहले भी बन, अगर हमको कोई भी 2 पैरामीटर गिवन है, थर्ड को हम कैलकुलेट कर लें.
ए और बी कांस्टेंट है तो वो हमें गिवन होना चाहिए फॉर अ गैस। तो एक बार अपन ए और बी कांस्टेंट, ए और बी के बारे में चेक करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। हमको ए से हम क्या समझें और बी से हम क्या समझें, फिर अपन लिखेंगे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। तो पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी। So we'll write that what is the significance of A and significance of B. तो पहले significance of A की बात करते हैं। Significance of A, significance of van der Waals constant, constant A and B। तो अपन लिख लेते हैं significance of A, of A। अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट धीरे धीरे कम हो जाते हैं जब क्लास का टाइम बढ़ता है। अभी 44 हो गया, पहले 49 था, कभी कभी 53 भी हो जाता है। तो बाकी स्टूडेंट जाते कहाँ? उनको नहीं पढ़ना है, वो धीरे धीरे कम होते हैं। अभी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मैं भी नहीं बोल रहा बिकॉज मंडे ऑनवर्ड्स काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे। बट ऐसे क्लासेस को मिस मत करो। पता जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे डिफरेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप क्लास को मिस करोगे ना तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना। अभी जो स्टूडेंट क्लास मिस कर रहे हैं उनको बाद में समझ में आएगा कि अरे यार सब तो बताया था सबने। फिर उसी इसी टाइप का स्टूडेंट जो क्लास छोड़ के भागता है ना, उसी टाइप का स्टूडेंट फिर रिपीट करके आता है कि सर अब रिपीट करके पढ़ा दो, पहले तो मैं सीरियस नहीं था, फिर रिपीट करके आता है। तो ठीक है, मतलब तुमने देखा होगा मैं बोलता भी नहीं भाई किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। तुम लोग बड़े बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, है ना? तो आपको सीरियस रहना चाहिए स्टडीज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसी बातें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और काफी सारा पार्ट अपने बिल्कुल डायरेक्टली जैसे अपन क्लास में पढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन होगी ऐसी बात है, उसके लिए आपको शीट सॉल्व करना होगा, और शीट सॉल्व हो जाएगा तो आप बुक सॉल्व कर लोगे, लेकिन पहले शीट। तो मैं देखता हूँ कभी कभी वो 49 हो जाता है, फिर धीरे धीरे 54 पे आ जाता है, 43 44 पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे 46 होता है। फिर तो या तो एक दो स्टूडेंट का तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी स्टूडेंट उनको लगता है ठीक है ना, घर में बहाना बना देते हैं, मेरा हेडेक से मतलब पैर में हेडेक होता है, ऐसे बहाना बनाते हैं ना। तो ठीक है, अभी तो एक साल पूरा तुम्हारे लिए तो काफी फायदा भी हो जाएगा। तुम लोग पढ़ रहे हो आराम से, सीरियसली पढ़ो। अगर बैच को सीरियसली पढ़ते हो ना तो 11th क्लास में वैसे ही बच्चे बेचारे परेशान हो गए पूरे, मतलब तुम्हारा कंपटीशन तो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट ईयर जिनको देना है ना आईआईटी, उनके लिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि 20% बच्चा ही पढ़ पा रहा है। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ तुमसे। और 20% बच्चों में भी क्या है ना, अभी मैंने आपका वीडियो तो ऑन नहीं कर पाया, काफी सारे बच्चे ना तुम लोगों में से भी गेम खेल रहे होंगे और पेरेंट्स को पता ही नहीं। लेकिन वो मतलब लाइफ में एक चीज तो ध्यान रखो, अगर आप अपने लिए ही ईमानदार नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट इतना तो स्टूडेंट को करना चाहिए कि वो अपने लिए ईमानदार रहे। ठीक है, पेरेंट्स के लिए ना रहे, वो काफी प्रोफेशनल है, उसे पेरेंट्स ईमानदारी कुछ नहीं दिखानी, अपने लिए तो रहो लाइफ, उतना तो करना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। चलो अपन पढ़ते हैं, क्योंकि अपन थोड़ा स्लो भी पढ़ रहे हैं, मैं भी स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई अपन को ना सारे
कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली पूछेंगे कंसेप्ट। अपन ने ए को कांस्टेंट डाला था जब अपन ने लिखा था प्रेशर करेक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो अपन ने कहा कि भाई ए का सिग्निफिकेंस है, its value signifies the force of attraction among the gas particles of in gas among the gas particles in gaseous cell. Abhi what will happen? Value of A is different for different gases, because different gases का size different होता है ना, different gases का boiling point भी different होता है, different gases में force of attraction भी different होता है, मैंने पढ़ा हुआ है noble gases में top to bottom. The force of attraction between, because surface area बड़ा होता है तो force of attraction ज्यादा होता है, तो उनका force of attraction ज्यादा होगा तो boiling point ज्यादा होगा, क्योंकि उनको separate करना मुश्किल होगा. The value of A is different for different gases. Value of A is different for different gases. For different gases. Gases. अब अपन को एक बात पता है, जिन गैसेस के लिए A का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट, इसका सिग्निफिकेंस यही है ना, वो अपन को ये सिग्निफाई करेगा कि अगर A का वैल्यू ज्यादा है मतलब गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. अगर गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उन गैसेस को लिक्विफाई करना भी इजी होगा, बिकॉज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन इजी होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन इजी होगा. तो अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होगा, मतलब उन गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई करेंगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस, attraction among gas particles, gas molecules is directly proportional to value of A. जो A का वैल्यू अगर ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. Ease of liquefaction of gases. Liquefaction of gas directly proportional to value of A. अगर वैल्यू ऑफ A ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो फिर लिक्विफिकेशन भी इजी होगा. वैल्यू ऑफ A तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी इजी होगा. द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. ठीक है, अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ठीक है आपने ऐसे बता दिया, कुछ गैसेस भी तो बताओ जिसमें अपन ऐसे बता दें. एग्जांपल वैल्यू ऑफ ए और ज़ेनॉन के लिए अपन हीलियम से लिखना शुरू करते हैं. हीलियम के लिए कम होगा नियोन से, नियोन के लिए कम होगा क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन के लिए आर्गन से, क्रिप्टॉन से, ऐसे अपन वो भी आर्गन भी लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन से, then ज़ेनॉन से लिख देते हैं. Why it is so? Because ये सारे के सारे इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, इसलिए मैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करने वाला. मैं तो इनके सरफेस एरिया से बताऊंगा, जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा. वंडरफुल फोर्सेस. तो अच्छा मैं ऐसे बताऊं तो
वैल्यू ऑफ ए, अब बार बार नहीं लिखते अपन वैल्यू ऑफ ए है। मेरे पास HF है, मेरे पास H2O है और मेरे पास NH3 है। अगर इनमें लिखना है तो अपन कहेंगे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक कर लेते हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है इससे, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है इससे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा होगा इससे, इसमें ज्यादा होगा इससे। लेकिन अगर हम ओवरऑल चेक करें तो अपन ऐसे बता सकते हैं, इसमें अगर आप आइस या आप बात कर रहे हो कि वेपराइज करने के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इससे। इसमें पार्टिकल्स, अगर मैं सिर्फ दो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओ, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, या इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसी को बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। आप हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी पूछ रहे हैं, आप तो वैल्यू ऑफ ए पूछ रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए का मतलब है कि ओवरऑल दो मॉलिक्यूल के बीच में मतलब मैक्सिमम फोर्स, एक मोल है, ए और बी जो है वो पर मोल अपन ने लिखा हुआ, अपन यूनिट में पर मोल यूज किया। तो 1 मोल ऑफ वाटर में तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता होगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -35 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता होगा। तो जिसको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ा उसका अट्रैक्शन भी ज्यादा होता होगा। तो लिखा था ना अपन ने, लिक्विड में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है और आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर बॉइलिंग पॉइंट पता है तो मैं वैल्यू ऑफ ए बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकते हो। वैल्यू ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग, डिपेंड करेगा। तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जिसका साइज बड़ा होगा उसका वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगा, ये नहीं बोल सकते आप। क्यों ऐसे नहीं बोल सकते आप? क्योंकि मैं लिखूंगा H2O का ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है बेंजीन से। व्हाइट इज सो, H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी है। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता किसी का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा होगा, ऐसे नहीं होता। तो इस टाइप से अपन एक ऑर्डर ऐसे बना लेते हैं कि भाई मतलब, हाँ अगर मैं ऐसे करूंगा, मेरे पास बेंजीन है और फिर मैंने एक बेंजीन मॉलिक्यूल लिखा और उसमें एक CH3 भी लगा दिया, तो अपन कहेंगे देखो भाई इस ये दोनों ही नॉन पोलर जैसे हो गए, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें सरफेस एरिया एक कार्बन का ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो अपन बोल सकते हैं दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है इससे, तो उसका एक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए इससे। हमें क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल गिवन होगा ABC, ऐसे इसका ऐसे ए का वैल्यू दे दिया, इसका 2, 5, 1, तो अपन कहेंगे अच्छा ये इसका वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू कम होने का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा, क्योंकि इस पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसमें सबसे ज्यादा होंगे। ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मुझे और भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, तो मैं वैल्यू ऑफ ए बहुत जगह यूज करने वाला हूँ इसके सिग्निफिकेंस को, मैं सिर्फ यहाँ थोड़ी पढ़ाऊंगा। अब भाई जब ए के वैल्यू से मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता सकता हूँ तो फिर मैं सभी की जगह यूज करूंगा इसको, और भी केमिस्ट्री में और भी जगह यूज करूंगा। अब थोड़ा सा आप इस टाइप का ऑर्डर ध्यान रखो, जैसे अपने पास SO3 है, इसके लिए ज्यादा होगा NH3 से, NH3 ज्यादा होगा HCl से, HCl ज्यादा होगा CO2 से, CO2 ज्यादा होगा O2 से, O2 ज्यादा होगा N2 से, N2 ज्यादा होगा हीलियम से, और हीलियम ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। ये थोड़ा आता है, अपन क्या करेंगे, अब मैं इसमें वैल्यूज वगैरह नहीं लिख रहा, जैसे ये 6.2 है, ये 4.17, इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये अपन को देंगे ना एग्जाम क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में देंगे तो फिर क्यों वैल्यूज याद रखने, मैंने तो थोड़ा थोड़ा वैल्यूज जो है, इसलिए जैसे H2O का 25 होता है का वैल्यू, मुझे बिल्कुल नहीं बताना, मैं तो सीधा सीधा जानता हूँ कि भाई जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो बॉइलिंग पॉइंट बताओ या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका ए का वैल्यू ज्यादा है। अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ, तो अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बहुत वीक होता है, -35 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका बॉइलिंग पॉइंट। पहले भी अपन ने पढ़ा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा कि हाइड्रोजन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होता है। उसका वैल्यू तो 6 पॉइंट। बोलो सर, आपने वो ई पॉइंट में लास्ट वाला एलिमेंट क्या लिखा है? लास्ट वाला हाइड्रोजन है ना, बोला था ना हाइड्रोजन, हीलियम के बाद He के बाद हाइड्रोजन। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, इसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। फिर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिक्विड में 3 बनते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3H बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये 2H बॉन्ड बनाएगा और ए का वैल्यू हमें पर मोल लेना होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लेना होता, पर मोल। बिल्कुल, मतलब सरफेस एरिया से अगर अपन कंपेयर कर रहे होंगे, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू सरफेस एरिया। लेकिन अमोनिया में थोड़ा ध्यान रखना, वैसे जितना अपन से पूछेंगे ना, ऑलमोस्ट मैंने सारा लिख दिया, ऑलमोस्ट सारा मैंने आपको बता दिया जहां आप गलती कर सकते थे। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अब इस टाइप से कोई पूछेगा तो कोई अपन को बताने की जरूरत थोड़ी है, पता है मुझे तो भाई इसमें 3 एटम है, इसमें 2 ही एटम है, ऑब्वियसली बात है, इसका एक वैल्यू ज्यादा होगा। और अपन से मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन तो वही बनाते हैं जैसे मैंने अभी बनाया था ना, एक जगह वो दे देते हैं, कॉलम देते हैं जिसमें गैसेस लिख देते हैं, दूसरी तरफ वो लिख देते हैं कि भाई ये इनके ए के वैल्यूज है। बताओ अगर ए के वैल्यूज है तो मोस्ट इजीली कौन सा लिक्विफाई हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, कौन इजीली लिक्विफाई हो सकता है मुझे पता है। कौन सा इजीली लिक्विफाई हो सकता है अपन को पता है। अब अपन बात करेंगे वैल्यू ऑफ बी की। ये ए लिखा था, ये बी लिखा है, इधर भी बी लिख देते हैं भाई, तो बड़ा अच्छा हो गया। बी में बी का सिग्निफिकेंस, ए में ए का सिग्निफिकेंस, ठीक है। इट्स वैल्यू सिग्निफाइज। अब जैसे बी को तो अपन ने वॉल्यूम करेक्शन में यूज किया था, तो बी में तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने ना जैसे ए में अपन ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी, तो बी में भी अपन देखते हैं क्या लिखते हैं, अपन इसको हटाते हैं, इतना हटाते हैं, ऊपर वाले पार्ट को सिग्निफिकेंस ऑफ बी। अपन क्या करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बी में, आपने v इज इक्वल टू एन बी लिखा था, ये मुझे पता था, और आपने b मुझे बताया था b इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन लिखा था। एन तो कांस्टेंट है, अपन को पता है, इसमें सब कांस्टेंट है आर के अलावा। मतलब आर का वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं बी के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता हूं, मतलब रेडियस अगर बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा, मतलब इट्स वैल्यू विल सिग्निफाई द साइज ऑफ द गैस पार्टिकल्स। सो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं its value signifies the size of the gas particles, size of the gas particle। अगर साइज ऑफ द गैस पार्टिकल है तो अपन ठीक है भाई, जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा बी का वैल्यू होगा। एग्जाम्पल है ना, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू लिखूंगा तो हीलियम के लिए छोटा होगा नियॉन से, नियॉन के लिए छोटा होगा आर्गन से, आर्गन के लिए छोटा होगा क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन से ज़ीनॉन से। ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया, तो जो साइज होगा वो लिखेंगे।
इधर भी लिख सकते हैं, इसका साइज बड़ा होगा इससे, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा एटम ज्यादा साइज बड़ा होगा। SO3 का साइज बड़ा होगा SO2 से। तो वैल्यू ऑफ बी जो है वो सिग्निफाई करेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ। तो क्या बी के वैल्यू से अपन ऐसे बता सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ बी, मान लो मेरे पास ऐसे क्या है, अब इसको भी ना फोर्थ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, अमोनिया गिवन है और CO2 गिवन है, बताओ बी का वैल्यू किसका ज्यादा, अपन बता सकते हैं बी का वैल्यू किसका ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए बी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सोचते हैं फिर बताते हैं। एक आंसर आया मेरे पास, एक और आया मेरे पास, दो आंसर आए अपने पास। तो अपन कहेंगे इसका साइज बड़ा होगा, पता क्यों? क्योंकि CO2 जो होगा ना वो लीनियर होगा और अमोनिया विल बी टेट्राहेड्रल। ऐसे होगा ना, अगर मैं इसका स्फीयर बनाऊंगा ना और इसका स्फीयर बनाऊंगा, अब ये देख सकते हैं आप, इधर से इधर पूरा डायमीटर बनाना है, वो लीनियर है ना, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि ये लीनियर है तो ऐसे कर दूंगा, मुझे तो सभी मॉलिक्यूल को स्फेरिकल अज्यूम करना है ना, तभी तो आप 4/3/r³ लिख रहे हो। इसलिए अमोनिया वो टेट्राहेड्रल की वजह से छोटा हो गया और ये लीनियर होने की वजह से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल था, बट अगर अपन को बी का वैल्यू दे दें तो अपन बता सकते हैं कि भाई किसका वॉल्यूम बड़ा होगा, बट बी का वैल्यू क्यों देंगे, रेडियस देंगे तो अपन बता सकते हैं बी का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में अपन को गिवन होता है वैसे कि भाई बी का वैल्यू ना वेरिएबल टू टेल, तो ये बी का सिग्निफिकेंस है। नाउ वी कैन रीड द ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक ऑफ van der Waals equation or real gas equation of state। देख लेते हैं भाई क्या है इसके ड्रॉबैक्स। एक तो इसका मेजर ड्रॉबैक है, it is only applicable for certain range of temperature, a range of temperature, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, जबकि आइडियल गैस किसी भी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होगा। वो तो आइडियल है ना, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं बता रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ ए विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स। भाई ए क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा ना तो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम हो जाएगा और टूट जाएंगे ना, बॉन्ड टूट जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। ए कैसे कांस्टेंट रह पाएगा? Because value of A doesn't remain constant at high temperatures. Because value of A do not remain constant at high temperature. Constant at high temperature. Do not remain constant at high temperature. Oh, force of attraction ही तो है
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी गैस पार्टिकल्स का। सेकंड, at high temperature particle will move away from each other. तो बी कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा, बी तो तभी कैलकुलेट करूंगा ना जब वो एक साथ कोलाइड हो, एक साथ रहे at high temperature. B can't be calculated as kinetic energy of the particle will be very high, is very high. तो अपन उसको पार्टिकल अगर एक दूसरे के पास रेस्ट नहीं करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करोगे? That is not applicable. तो ये मेजर ड्रॉबैक था उसका, भाई बी भी कांस्टेंट नहीं रहता हाई टेम्परेचर पे, बी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और ए कांस्टेंट नहीं रहेगा, और कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर अप्लाई कैसे करेंगे वन डाबल इक्वेशन? दीज द ड्रॉबैक्स। आज अपन ने रियल गैस इक्वेशन को सिर्फ सीखा है, अभी पढ़ा नहीं, और रियल गैस इक्वेशन के पार्ट्स को डिस्कस किया है, पढ़ेंगे इसको अपन नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क है आइडियल गैस को पूरा कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट करो आइडियल गैस वाले पार्ट, और रियल गैस वाला पार्ट अपना नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तो अपन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा अपना, मतलब नेक्स्ट वीक में हमारा डाउट्स और रियल गैस दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स में आज बोल देता हूँ क्योंकि बाकी नोट्स जो है ना वो बड़े वाले नोट्स वो नहीं चाहिए अपन को नोट्स चाहिए प्रीवियस क्लास में जो मैंने पहले पढ़ाया था लास्ट ईयर। तो मैं श्रेया को बोलता हूँ वो कॉपी करके भेजेगी अपने पास, मैं उसको बोल देता हूँ वो कॉपी करके मतलब एक स्कैन कैम स्कैनर से अपने पास भेजेगी लास्ट ईयर के नोट्स, तो मैं बता दूँ। इनऑर्गेनिक का डीपीपी का बुकलेट ये है नहीं शायद मेरे पास, मैं देखता हूँ अगर स्टूडेंट कॉपी होगी तो मैं भेज देता हूँ इनऑर्गेनिक का बुकलेट। इनऑर्गेनिक भी अपन शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक भी शुरू करना है, पहले तो ऑर्गेनिक की प्लानिंग करनी होगी उसको कैसे पढ़ना है क्योंकि वो बिल्कुल नया होगा तुम्हारे लिए, बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है ना। ठीक है, फिर आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, होमवर्क आपके पास है, नेक्स्ट टाइम फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। चलो भाई दैट्स ऑल है, बाय हाय सर। बाय।